Hello students, welcome back after a long time. Hope you have studied the previous chapters properly. So today we'll move on to the next chapter, that is chapter number 3 in your English book. I hope all of you have got your books. आप सबके पास books है तो पढ़ने में आप सबको आसानी रहेगी. The third chapter is good habits and bad habits. It's a short chapter, short story which has moral in it, which will teach you something. So what are habits? Habits means the daily, day-to-day activities which you do in your daily life. तो जो रेगुलर काम आप करते हो वो आपके हैबिट्स होते हैं. किसी में गुड हैबिट्स होती हैं, किसी में बैड हैबिट्स होती हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि सब में गुड हैबिट्स ही हो. एवरीबडी हैज़ बैड हैबिट्स आल्सो. तो बैड हैबिट्स को हमारी ज़िंदगी से निकाल दे तो दैट इज़ गुड फॉर our life. So what are habits? Good habits help us to become good human beings. Just like we throw away all the dirty and useless things from our home, we should throw our bad habits and treasure our good habits. That means जैसे हम हमारी घर में जो गंदगी होती है उसको निकाल फेंकते हैं ताकि घर हमारा साफ़ सुथरा हो, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में से जो हमारी बैड हैबिट्स होती है अगर उसको निकाल फेंकते हैं तो हमारी लाइफ भी साफ़ सुथरी हो जाएगी. So let's read the chapter now. Sohan and Sumit were good friends. They were neighbors. They went to the same school and studied in the same class. In spite of being close friends, they were very different from one another. So it's a story about Sohan and Sumit. Sohan और सुमित वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे और वो एक दूसरे के नेबर्स भी. दैट मीन्स वो अपने दोनों का घर एकदम पास में था. दे वेंट टू द सेम स्कूल, पढ़ने भी एक ही स्कूल जाते थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस थे. वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे. अब कैसे डिफरेंट थे? लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. Sohan was well-mannered boy who never fought with anyone and took good care of his belongings. Well-mannered मतलब well-disciplined, जिसमें अच्छे संस्कार हो, अच्छी आदतें हो. Sumit always quarreled with everyone. On the other hand, Sumit was quarrelsome. He never knew what where his things were except his amazing pencil box, a gift from his uncle. So, here are the description of Sohan and Sumit. Sohan was a well-mannered, already discussed. Sohan. Students, we have seen the first paragraph of this chapter. So let's underline the hard words from the first paragraph. We'll start up with the warm-up section. We first underline the word useless. Useless means वो ऐसी चीज़ जो कोई काम की नहीं होती, that is not useful. Next word is treasure. Treasure means खजाना. The next word is neighbors. Neighbors means आपके पड़ोसी. And the other word is different. Now, starting the second paragraph, we see Sohan was well-mannered boy who never fought with anyone and took good care of his belongings. Please underline the word well-mannered and belongings. Well-mannered means well-disciplined, जिसकी आदतें हैबिट्स बहुत अच्छी हो, up to date हो. Belonging means जो किसी को belong करते चीज़ें जिसकी हो, that is belonging. Sumit always quarreled with everyone. Please underline the word quarreled. Now, it shows that Sohan was well-mannered, well-disciplined. It was up to date. His manners were very good और वो अपने दोस्तों के साथ बहुत फ्रेंडली था, बहुत कोऑपरेटिव था. On the other hand, Sumit was quarrelsome. वो हर टाइम किसी से लड़ाई करना, झगड़ा करना, उसकी ये आदतें थी. And he never knew what his things were except his amazing musical pencil box, a gift from his uncle. उसको अपनी चीज़ों का भी पता नहीं था. उसकी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी चीज़ें कौन सी है, बिकॉज ही नेवर टुक गुड केयर ऑफ देम. उससे सिर्फ उसकी एक पेंसिल बॉक्स, अमेजिंग मीन्स वंडरफुल, जो बहुत अट्रैक्टिव अच्छी हो, वो एक म्यूज़िकल पेंसिल बॉक्स थी जो उसके अंकल ने उसे गिफ्ट के रूप में दी थी. वो उसे लाइक करता था तो उसकी थोड़ी बहुत वो केयर करता था.
So these are the differences between सोहन and सुमित. These are the उसके natures बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि सुमित कैसा था और सोहन कैसा था. They were very much different from each other. Things were except his amazing pencil box, a gift from his uncle. So here are the description of Sohan and Sumit. Sohan was a well-mannered, already discussed Sohan. Yes, moving on to the third paragraph, next page, we see Sumit's mother tried to change his habits but failed. That means सुमित की मदर ने उसकी ये बैड हैबिट्स को चेंज करने की बहुत कोशिश की, ये गंदी आदत छोड़ दे, केयरलेसनेस छोड़ दे, लेकिन वो नहीं कर सकी. सुमित वैसा ही था, अपनी चीज़ों के प्रति नेग्लिजेंस और दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना वो उसकी अब आदत बन गई थी. One day, Sumit lost his school bag with his books and the musical pencil box. He couldn't remember, underline the word remember. Remember means याद करना. Where he had left his bag and was almost in tears. Now see, एक दिन क्या होता है. On the other hand, Sohan, no one wanted to help him looking for his bag. Because of his quarrelsome nature, underline the word quarrelsome, Sohan and Sumit could not find the bag. See, एक दिन क्या होता है, सुमित अपनी पूरी बैग जिसमें उसकी म्यूज़िकल पेंसिल बॉक्सेस फेवरेट बॉक्स थी, वो उसकी बॉक्स समेत पूरी बैग हो गई. अब क्या होता है, अब दूसरों की किसी की हेल्प मांगे तो क्योंकि उसका नेचर अच्छा नहीं था तो नो वन वाज रेडी टू हेल्प हिम. तो उसने क्या किया, सोहन क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड था तो उसने उसकी मदद करने की ठानी, और उसके अलावा कोई भी फ्रेंड उसकी मदद करने के लिए रेडी नहीं थे क्योंकि वो झगड़ालू था, जिसके बोलने का ढंग अच्छा नहीं था, बिकॉज ही वॉज नॉट डिसिप्लिन. तो ही कुडंट रिमेंबर, अब उसे याद नहीं आ रहा है कि मैंने अपनी बैग कहाँ रख दी. अब वो एकदम परेशान हो रहा है क्योंकि उसकी फेवरेट पेंसिल बॉक्स उसके अंदर थी. अब सोहन एंड सुमित ने दोनों ने इधर उधर सब जगह उसे ढूंढा, बट दे कुडंट find it. Moving on the next para, Sumit was very sad. Sohan requested, underline the word requested. Requested means किसी को request करना, सिफारिश करना. His classmates to help him find Sumit's bag. Sohan was very sad. Within no time, they found the bag. It has fallen behind the bushes. Underline the word bushes. Bushes means झाड़ियाँ होती ना. On the playground during the lunch break. Now see. अब सोहन की इस हरकत से बैग कहीं नहीं मिल रहा था और वो अब दुखी हो गया. उसको बैग की तो ज़्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उसमें जो म्यूज़िकल पेंसिल बॉक्स इट वाज हिज फेवरेट वन, तो उसके लिए वो दुखी हो रहा था. सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला. तब उसके फ्रेंड सोहन ने सबको रिक्वेस्ट किया, उसके क्लासमेट्स को, कि प्लीज़ है ना हमारी मदद करो ताकि हमारी बैग मिल जाए. तब सोहन के कहने पर, बिकॉज ही वॉज गुड मैनर्ड, तो उसके कहने पर सब ने मिलकर बैग ढूंढा और वो जल्दी मिल गया. वो कहाँ था, झाड़ियों के पीछे. जब लंच ब्रेक, क्योंकि वो लापरवाह तो था, तो लंच ब्रेक में जब वो लंच कर रहे थे तो बैग को कहीं फेंक दिया, तो वो झाड़ियों के पीछे कहीं गिर गया और फिर उनको दिख नहीं रही थी. तो लंच ब्रेक में उन्होंने उसको वहाँ गिरा दी थी और वो सबकी मदद से बैग मिल गया. That day, Sumit understood the value of having good habits and promised to change himself. Please underline the word understood, मतलब समझ में आ गया, and promised means promise करना, वादा करना. उस दिन उसे समझ में आया कि गुड हैबिट्स का क्या प्रभाव होता है और बैड हैबिट्स का क्या इफेक्ट होता है. मतलब गुड हैबिट्स बहुत काम आती है और बैड हैबिट्स के चलते इंसान अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेता है, ख़राब कर लेता है. सो स्टूडेंट्स, हमने ये गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स का चैप्टर पढ़ लिया है. आई होप आप सबको समझ में आ गया कि गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के क्या हमारे लाइफ पे इफ़ेक्ट होता है. गुड हैबिट्स हमारी लाइफ को अच्छा बना देती है और मिलनसार आदतें, अच्छी आदतें जो होती हैं, जैसे सोहन था तब, और गंदी आदतें जो सुमित करता था, उससे
लाइफ में कैसे चेंजेस आ जाते हैं, ये सब हमने इस स्टोरी से, इस छोटी सी स्टोरी से हमने जाना। तो हम सब में बैड हैबिट्स होती है, किसी से लड़ाई करना, कोई आप लोग स्टूडेंट्स देखते हो कोई होमवर्क नहीं करते हैं, मम्मी पापा का कहना नहीं मानते हैं, ये सब हमारे अंदर की बैड हैबिट्स हैं। अब आप सबको आज ये तय करना है कि हमें ये आदतें आगे लेके चलना है या इसे यहीं छोड़ना है। आगे जाके अगर ये हम बैड हैबिट्स को कैरी ऑन करेंगे तो लाइफ में हमेशा हमें प्रॉब्लम ही आएगी। तो इन हम सब के अंदर बैड हैबिट्स है, आज ही आपको तय करना है कि हमें इसको छोड़ना है, ताकि हमारी लाइफ में कोई भी आगे प्रॉब्लम ना आए। और जो गुड हैबिट्स होती है, फ्रेंडली होना, अच्छा वेल डिसिप्लिन होना, नीट एंड क्लीन होना, बड़ों का आदर करना, टाइम से खाना खाना, सोना, ये सब दीज ऑल आर गुड हैबिट्स। और हमें अपनी लाइफ में गुड हैबिट्स को लेके चलना है। तो आज आप खुद से वादा करो कि हमारे अंदर जो बैड हैबिट्स हैं उसको हम फेंक निकालेंगे और हमारी लाइफ को क्लियर कर लेंगे। Thank you. Now it's your duty to read the chapter 2 to 3 times and learn the hard words properly. Thank you.